بیماری کے اندر مبتلا تھا، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے میرے مولا تو نے جو میں جس مصیبت میں پریشانی کے حال کا محاسبہ کر رہے تھے، زندگی کا مرحلہ گزار رہے تھے، اس حال میں اللہ تو نے مجھے ٹھیک اور تندرستی کر دیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ قرآن کہتے ہیں لاکھ لاکھ شکر کے مطلب سمجھ تو ایک بار بولو گے لاکھ مرتبہ ہو جائے نا، یہ بھی بہت بڑی اللہ کے نعمت۔ ایک مہینہ بھی ایک ایسا دن آتا بھی ہے، اب اس مجلس میں ہم نے بیٹھے ہیں اور دوسرے مجلس میں بیٹھنے والے ابھی جو اس مجلس میں ہم نے آئے ہیں، آپ سمجھیے کہ رامپور سے اگر آپ چل کر آئے ہیں یا بابو پہی سے چل کر آئے ہیں یا مدھوبنی سے چل کر آئے ہیں، رشتے دار وکار جہاں کہیں سے بھی چل کر آئے ہیں، سبے اس کی قدم کا نیکیاں تو گنتے جائیے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، اللہ کی کبرائی کی قسم، اللہ کی بڑائی کی قسم، میں آپ کی قسمیں کھا کے کہتا ہوں، رب قدیر نے کہا تمہارے ہر نیکی کی عوض میں ہر 10 نیکی عطا فرماتا ہوں، تمہارے ہر قدم کی عوض میں ہر نیکی عطا 10 نیکی عطا فرماتا ہوں، تو اس کو 10 سے گناہ کر لو، رب قدیر نے تمہیں بہت سارے نیکی عطا فرما دیا، بہت سارے نیکیاں رب قدیر نے۔ لیکن محترم بزرگوں دوستو، جس حال میں آپ اور آپ ہیں، اسی حال کے اندر رب قدیر نے ایسے سب سے بنی اسرائیل کے آدمی میں، بنی اسرائیل کے ایک ایسے قوم میں 3 شخص کو، 3 آدمیوں کو رب کریم نے اپنے فرشتے کے شکل میں یعنی انسانی شکل کے لا کر پہنچاتا ہے، یعنی اس جگہوں پر امریکہ کے اندر نہیں بلکہ ہندوستان کے چپا کونے میں نہیں، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہروں میں بنی اسرائیل کا ایک قوم ایسا گزرنے والا ہے، ایک ایسا قوم ہے بنی اسرائیل کے قوم، یعنی وہ قوم ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والی قوم ہے۔ اس شخص کو دیکھیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسہ جب ہٹتا ہے، جب دور ہوتا ہے، بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام پر توکل ہے، لیکن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ایزدی پر توکل ہے۔ اس میں قرآن کے اندر سب آخری آیت میں نہیں بلکہ سورہ اما پارہ کے اندر لکھا ہے، سورہ اخلاص نام ہے، اس ورڈ میننگ کو پڑھیں گے، وہ الفاظ کو پڑھیں گے تو غور کیجئے گا، تب پتا چلے گا۔ قرآن کہتا ہے قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ قرآن کے محاسبہ کیجئے، قرآن کو پڑھیے، ٹٹولیے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ رب قدیر نے جو نعمتیں بنی اسرائیل کے جو 3 شخص کو دیتا ہے تو فرشتے کے شکل میں یعنی انسان بنا کر بھیجتا ہے کہ جاؤ اس شخص کے پاس۔ اب وہ 3 شخص کے پاس جو بھیجا رب قدیر نے، وہ تینوں آدمی کیسا تھا، اس کی شکل و صورت کیسی تھی، آپ کو پتا چل جائے گا۔ دیکھیں ایک شخص ایسا تھا کہ آنکھ کا نبینا تھا، دوسرا شخص ایسا تھا جو اس کے سر میں کوئی بال ہی نہیں تھا، تیسرا کیا تھا، وہ کوری انسان تھا۔ کیا تھا؟ کوری انسان، جس کو کوری جانتے ہیں نا ہمارے اور آپ کے بھاشا میں جانتے ہوں کہ کوری، اس کو جس کا چمڑا وائٹ ہو جاتا ہے، وائٹ چمڑا ہو جاتا ہے، اس کا کہیں چرک پھٹ جاتا ہے، جس کو ہمارا کہتے ہیں چرک پھٹنا، اس کو کہتے ہیں کوری۔ رب قدیر نے اس وقت میں بنی اسرائیل کے قوم میں فرشتے کو بھیجتا ہے، کس شکل میں دیتا ہے، مال دیکھ لیجئے ہمیں اور آپ کو کیسے مال نصیب عطا فرماتا ہے رب قدیر۔ جب بنی اسرائیل کے اس قوم کے اندر رب قدیر نے 3 شخص کو جاتا ہے تو پہلے شخص کے پاس جو جاتا ہے وہ کوری رہتا ہے۔ فرشتے کس کے پاس جا رہے ہیں، وہ کوری بڑی انسان کے پاس، اور کہتا ہے کہ بھائی تمہارا یہ حال کیوں ایسا بگڑا ہوا ہے، تمہارا حال کیسے بگڑ پڑا ہوا ہے، تمہارے چہرے کے اوپر کیا اتنا خرابی لگ رہا ہے، تمہارا چہرہ بگاڑ پر جیسا لگ رہا ہے۔ تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماں کے شکم ہی سے ایسا کر دیا ہے، اس لیے لوگوں نے مجھے تانا دیتا ہے کہ اگر میں نے تم کو ٹھیک کر دیا، کچھ اللہ کے واسطے تم دے دو، میں تم کو ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو کہا کہ رب قدیر کے نام پر مانگ رہا ہے، وہ فرشتے کہا کہ اللہ کے لیے کچھ دے دو، اللہ کے لیے کچھ دے دو، اگر تم نے اگر دے دو گے تو میں تمہارے سروں پہ اگر ہاتھ پھیر دوں گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بھائی کس بات کے دیگر کو کوئی آدمی کا جوبہ آ جائے کہیں کسی ملک سے اور ہم کہہ دیں کہ میں آپ کو گھر میں ایک ایسا
हीरा रख दूंगा तो कुछ रुपया आप दे दिए 10,000 रुपया, मैं आपको उस रात में देखिए बक्सा में 5 लाख रुपया रहेगा, तो आप चुकिएगा? नहीं चुकिएगा। तो उसी तरीके से बनी इसराइल को आजमाइश साहिल के रूप में फरिश्ते को भेजता है रब्बे कदीर में और नेमत अता करता है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब बनी इसराइल के कौम उस कोढ़ी इंसान के पास जाता है फरिश्ते, नूरी फरिश्ते, तो कहता है अल्लाह के लिए कुछ दे दो। तो उस आदमी कहता है कि भाई मैं तो लाचार हूँ, मेरे पास कुछ भी रुपया नहीं है, कुछ आमदनी की सूरत ही नहीं है, लेकिन तुमने अल्लाह के लिए मांग रहे हैं, जब अल्लाह मुझे अता कर देगा तो अल्लाह के राह में मैं खर्च करूंगा। तो उस वक्त में नूरी फरिश्ते ने कहता है ऐ इंसान आओ, जब तुम अल्लाह के नाम ले रहे हो तो तुम्हें हम अपने चेहरे पर हाथ से तुम्हारे चेहरे पर फेरता हूँ। वो इंसान को चेहरे पर फेरता है और फौरन ही जैसे हम और आप खूबसूरत है एक शक्ल के मानिंद है, वो इंसान व्हाइट और काले में जो थे वो फौरन ही बदल जाता है और शुक्रिया फरिश्ते फौरन गायब हो जाते, उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो नूरी फरिश्ते ने और कहता है कि तुम्हें मालूम कुछ और भी चाहिए? तो कहता है कि कुछ ऐसी चीज दे दी है कि मेरी जिंदगी का मसर हो जाए। उस वक्त में रब्बे कदीर की बारगाह एज़्दी से दुआ वो फरिश्ते करता है कि रब्बे कदीर ने कहता है क्या चीज ऐसी नेमत मांग रहा है जो मैं उसे दे दूं? तो रब्बे कदीर ने कहा उस शख्स के दिल के अंदर इल्का हुआ होगा, उस शख्स के अंदर फरिश्ते बनाकर रब्बे कदीर ने भेजा है। तो उसने कहा कि तुम्हें एक ऊंट देता हूं, उस ऊंट की एवज में तुम्हें उस कोरी इंसान को सिर्फ एक ऊंट देता है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और एक ऊंट से हजारों ऊंट समझिए 10,000 ऊंट हो चुका है। अब वो इतने बड़े प्रॉपर्टी वाला हो गया है, इतने मालदार हो गया है, तो समझिए जिस गांव के बनी इसराइल के कौम या उस मुल्क के अंदर वो ऊंट के जरिए से इतने बड़े मालदार हो गया है। दूसरे शख्स के पास जाता है जो आदमी गंजा है और कहता है भाई मैं साहिल बनकर आया हूँ, मैं फकीर बनकर आया हूँ, अल्लाह के लिए कुछ आप दे दीजिए। दूसरे कहता है मैं तो थका कशी गुजारता हूँ, मेरे पास कोई चीज तो नहीं है, मेरे पास कोई माल नहीं है, लेकिन वो मेरे सर का बाल जो नहीं है, मैं गंजा हूँ। दूसरा आदमी मुझे बुरी नजर से देखता है, अब मुझे बुरी नजर से लोगों ने उस पर तहमत लगाता है, मुझे देखता है तो बुरी नजर से देखता है, लोगों ने मुझे ताना देता है तुम्हारे सर का बाल उड़ चुका है, तुम गंजा हो चुके हो, तुम टकला हो चुके हो। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो नूरी फरिश्ते ने कहा था अल्लाह के लिए दे दो। कहा अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे माल ही नहीं दिया इतना कि मैं कुछ आपके लिए दे दूं। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, उस गांजे को कहता है अच्छा ठीक है और तुम एक ऐसी चीज दे देता हूँ तुम्हें पूरी दुनिया के अंदर इतने मालदार हो जाओगे। तो फौरन उस आदमी ने कहता है क्या देना चाहते हो दे दो, अगर अल्लाह के लिए कभी आओगे तो मैं तुमको दे दूंगा। उस वक्त में नूरी फरिश्ते ने उसके सर के ऊपर फेरता है, फौरन ही वो घने घने बाले उगने लगते। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, वो गंजा थे लेकिन अब उसके जिस्म के अड़ी टकले के ऊपर इतना हरियाली आ गया, अब तो बाल इधर से उधर फिराने लगे। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, फिर वो नूरी फरिश्ते कहते हैं उस गंजे को क्या चाहिए? तो उस वक्त में कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज दे दिए जिससे मैं मालदार हो जाऊं। तो नूरी फरिश्ते ने रब्बुल आलमीन के बारगाह एज़्दी में दुआ करता है ऐ बारी ताला कुछ ऐसी को नेमत दे दो। उनको तो इल्का होता है, दिलों के अंदर इल्का होता है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, और नूरी फरिश्ते ने उसे एक गाय अता कर देता है और एक गाय के तुफैल में उन्होंने इतने बड़े मालदार बन जाता है, इतना गाय उनके पास होता है कि गाय बेचता जाता है, खरीदता जाता है, बेचता जाता है, मालदारी का सबब तिजारत के सबब बढ़ते जा रही है, इतने माल बन रहा है। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जो ही वो फरिश्ते जब तीसरे फरिश्ते जब तीसरे सर के पास जाता है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो वो आदमी नबी न रहता है, कभी ठोकरे दर खाता है, कभी उस दीवार में, कभी उस जगह पे, कभी ठोकरे खाता है, लोगों से ताना देता है ऐ नबीना तुम्हें सोचता नहीं है, तुम देखते नहीं हो, तुम बहुत बेकार आदमी हो यार, मेरे जिस्म में ठोकर लगा दियो। कितने बुरी नजर से हम और आप देख लेते हैं किसी माँ को जिस्म का अंदर वो नबीना अचानक से ठोकरे खा जाए, इधर ठोकरे लगा दे, उधर ठोकर लगा दे, फौरन का बेटा हम और आप उस नबी को बजा सकते हैं
लेकिन उस वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो फरिश्ते को, नूरी फरिश्ते को भेजता है इंसानी शक्ल में, और तीसरी बार जो इंसान के पास जाता है वो नबीना इंसान रहता है। कहता है नबीना कुछ अल्लाह के लिए दे दो। वो भी इंसान इकरार नहीं करता है कि अल्लाह ताला ने माल ही तो इतना नहीं दिया है जो मैं आप अल्लाह के लिए दे दूं। अगर अल्लाह ने दिया रहता तो मैं जो मांगता मैं सारे के सारे माल अता कर देता। अच्छा ठीक है, अगर मैं तुम्हारी आंख को ठीक कर दिया तो कहा कि अगर आज मेरी आंख को ठीक कर दीजिएगा तो कल जो मांगेगा वो दे देंगे। तो कहा अल्लाह अकबर। फौरन ही वो नूरी फरिश्ते ने उसकी हाथ, अपना हाथ जो है उनके चेहरे पर फेरता है, और फेरने के बाद जब वो आंखें खोलते हैं तो पूरी दुनिया का नजारा करता है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, उस वक्त में उसकी कितनी खुशी मिली होगी। जो नबीना शख्स था उसने, उसकी रोशनी खुल गई, आंख से खुल गई, वो देखने लगे, चांद को देखने लगे, सूरज को देखने लगे, दुनिया को देखने लगे, हर चीज को, जमीन को देखने लगे। उस वक्त में उनकी खुशी कि आलम क्या होगी। कहा अच्छा आप तो तुम्हें रोशनी आ गया, मैं चला जाऊं। तो कहा कि कुछ ऐसी चीज दे दीजिए कि मैंने अपनी जिंदगी का मुहासबा कर लूं, अपनी जिंदगी का मरहला गुजार लूं। उस वक्त में रब्बे कदीर से वो नूरी फरिश्ते ने दिलों में इल्का हुआ। उस वक्त में नूरी फरिश्ते ने मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों उसको क्या अता करवाया। उस नबी ने आदमी को एक बकरी दिया, एक बकरी की एवज में, एक बकरी के एवज में रब्बे कदीर ने 1000 रेवट बना दिया है। इतनी रेवट बनाया है, इतनी रेवट बनाया है कि एक बकरी के तुफैल में 10,000 यानी 50,000 बकरी हो गया। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी माल देने के बाद, वो इंसान की इतनी नेमत देने के बाद, शुक्रिया अदा करने के बाद हमारे और आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब माल दे दे, कोई नेमत दे दे, कोई फजल आ जाए, कोई काम बन जाए तो उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब कहा अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐ मेरे बंदो मैंने तुम्हें जो मांगा मैं सारी अता कर दिया। फिर उस नूरी फरिश्ते को फिर दोबारा भेजता है उन्हीं तीनों शख्स के पास। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो कोई इंसान के पास पहले बार भेजता है कि जाओ जिसे तुमने ऊंट अता किया कि साहिल के बनकर जाओ, फकीर बनकर जाओ। उस इंसान बनी इस्राइल के कौमों के इंसान के पास, वो 3 इंसान के पास फिर डबल से फरिश्ते आता है कि आए इंसान तुम अल्लाह के लिए कुछ दे दो। तुमने उस वक्त में तुम्हारा ये हाल था। तो वो फरिश्ते को इनकारता है, कहता है जा तू कौन होता है ठीक करने वाला, तू कहां से आ गया ठीक कर देगा, तुम अल्लाह के बहुत बड़ा अल्लाह वाला हो गया, जा यहाँ से चला जा, तूने देने वाला है, देने वाला जात अल्लाह है। उस वक्त में भगाता है। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कहा आपने कोरी थे, आपका चेहरे पे दाग था, ऐसा था। कहा नहीं मैं तो माँ के पीठी से अच्छा बनकर आया हूँ, मैं ये ऐसा कुछ नहीं था। कहा अच्छा ऐसा बात है तो ठीक है जा। उस वक्त में नूरी फरिश्ते ने फिर उसके चेहरे को कहता है जैसा ही था वैसा ही हो जा, सारे के सारे माल गजब हो जाता है। वो इंसान फिर वैसे ही आलम में आ जाता है। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, फिर दूसरे के पास जाता है, वो गंजा इंसान के पास, क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें माँ के पेट से नहीं बनाया था, तुम गंजा ही बन के आए हुए थे, तुम्हारे सर के ऊपर कोई बाल नहीं था। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने इम्तिहान ले रहा है अपने बंदों के साथ, किस तरीके से मुहासबा करे, थोड़ा गौर करे, उस पर फिक्र करे। अल्लाह तबारक व तआला ने जब वो इंसान के पास, दूसरे इंसान के पास उसके फिर इम्तिहान के लिए पहुंचता है नूरी फरिश्ते कि तुम्हारे उस वक्त में सर में बाल नहीं था, तो उस नूरी फरिश्ते को उन्होंने जवाब देता कि जाजा मैंने माँ के शिकम ही से मेरा बाल बनकर आया है, निकल कर आया है, मेरे सर पे बाल था ही। उस फरिश्ते को कहता कि नहीं तुम देने वाले नहीं हो, देने वाले साथ अल्लाह है। तो कौन होता है, तो कौन होता है बाल उगाने वाला। उस वक्त में इनकार करता है। जब वो फरिश्ते फिर कहता है, उस सर पे हाथ फेर देता है, उसी का आलम ऐसा ही होता है जैसे पहले टकला था, पहले गंजा था, उसी हाल में हो जाता है। जब तीसरे शख्स के पास जब वो फरिश्ते पहुंचता है मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तो उसका हाल मुहासबा देके कहता है कि तुम्हारे पास तो कुछ माल नहीं था, तुमने इतने बड़ा प्रॉपर्टी वाला कैसे बन गया। कहने एक अल्लाह का बंदा आया हुआ था, एक ऐसा अल्लाह का वली आया था, उन्होंने एक बकरी मुझे दिया और उस एक बकरी के बस में इतनी बकरी हो गया। तो उस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला के लिए कहा एक बकरी दे दो। कहा तुम एक बकरी क्या मांगते हो, इसमें 10,000 बकरी है, जितना दिन चाहते हो सारे के सारे
सूरज इधर से चाहते हो उधर से ले लो, जितना चाहते हो सारे बकरियां तुम ले लो, अल्लाह के लिए ले लो, ईश्वर के लिए ले लो, गॉड के लिए लियो, यानी सारी बकरियां तुम अल्लाह के लिए मैं लिल्लाह कर देता हूँ, जितना लेना चाहते हो ले लो, अल्लाह का दिया हुआ माल है, अल्लाह की राह में जाएगा। अल्लाह ने कहा इल्म एक ऐसी दौलत है कभी घटती नहीं, यानी कभी घटती नहीं, यानी इल्म एक ऐसी हस्ती है हमें और आपका मजहब इस्लाम के अंदर नहीं, किसी भी हिंदू मित्र भाइयों के अंदर शिक्षित परिवार अगर होगा, अगर वो पढ़े लिखे इंसान होगा, वो इल्म अगर व्याकरण करता है, अगर ये किसी के पास दूसरे के पास पहुंचाता है, ये दूसरे इंसान को पढ़ाता है, तो उसके माल में कभी कम नहीं होता है। इल्म एक ऐसी दौलत है कभी घटती नहीं, खर्च करने से कभी बढ़ती है कि घटती नहीं है, बढ़ जाती है, जितना खर्च कीजिएगा उतना ही बढ़ता जाएगा। अल्लाह की राह में जितना आप दीजिएगा उतना रब्बुल आलमीन आपको अता करेगा।